So is it visible? Yes, sir. Shall I start now? Yes, sir. Sure, sir. So this is the next topic, Debye-Scherrer method. This method is used to determine crystal structure of polycrystalline materials. What is done? A finely ground powdered sample contains large number of small crystals. When you take a powdered sample, it is made up of, it contains millions of small number of crystals. And all those crystals are randomly oriented in all possible directions. जब हम पाउडर लेंगे जिसका एक्सरे करना है, that powder contains a number of small crystals, and those number of crystals are randomly oriented in all possible directions. So what is there in crystals? Each crystal contains planes in them. Which is the first plane present in a crystal? 100. Second plane is 110. Third plane is 111. So on. Fourth plane 200, 210, 211, and so on. So every crystal contains these planes. But difference ये होता है जब एक्सरे फॉल करती हैं, it is not necessary कि all the planes in a crystal diffract X-rays. वही planes X-ray diffract करेंगे. Those planes in a crystal will diffract X-rays which are oriented at Bragg's angle theta. तो Bragg's condition है. जो planes जो हैं, जो with respect to X-rays Bragg's angle theta पर होंगे, they cause diffraction of X-rays. And those planes in a crystal which are not at Bragg's angle theta, those will not cause diffraction. But क्योंकि powder sample में, it is not single crystal, we are discussing powder sample, and powder sample contains a large number of small crystals in them. And I said all these crystals are oriented, randomly oriented in all possible directions. कोई क्रिस्टल किस डायरेक्शन में है ओरिएंटेड, कोई क्रिस्टल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. तो वी मे सपोज हियर ये सारे क्रिस्टल नहीं, फॉर ईच सेट ऑफ प्लेन्स देयर मस्ट बी सम क्रिस्टल्स व्हिच आर ओरिएंटेड एट ब्रैग्स एंगल थीटा. सपोज करते हैं पाउडर सैंपल में 1000 क्रिस्टल है और हर क्रिस्टल में 100 प्लेन प्रेजेंट है. दिस इज द फर्स्ट प्लेन प्रेजेंट. बट ऐसा तो नहीं है कि जितने भी 1000 क्रिस्टल प्रेजेंट हैं उनका हर 100 प्लेन जो होगा वो ब्रैग्स एंगल थीटा पर होगा. हो सकता है 1000 में से कोई 10 क्रिस्टल्स हों जिनके 100 प्लेन्स जो होंगे वो ब्रैग्स एंगल थीटा पर हो, दे कॉज डिफ्रैक्शन. ऐसे ही नेक्स्ट होगा 110 प्लेन, हो सकता है कि कोई और 20 क्रिस्टल्स होंगे जिनके 110 प्लेन्स जो होंगे दे आर एट ब्रैग्स एंगल थीटा, बाकी नहीं होंगे, एंड सो ऑन. माय पॉइंट बेसिकली इज that for each set of planes, you can see here, each set of planes, at least there are some crystals which must be oriented at Bragg's angle theta, and thus diffraction. एक दो क्रिस्टल हो तो हम क्या सकते हैं कि 100 plane in one crystal and a second crystal is not causing diffraction because first और second crystal में किसी में भी 100 प्रेजेंट होंगे तो उनमें से देयर मस्ट बी सम क्रिस्टल्स जिनके 100 planes must be oriented at Bragg's angle theta and diffraction is caused. If such a sample is placed in the path of monochromatic X-ray beam,
डिफ्रैक्शन आकर्स, डिफ्रैक्शन तो होगी बिकॉज क्रिस्टल्स अलग अलग ओरिएंटेशन रैंडमली ओरिएंटेड हैं, तो प्लेन्स अलग अलग एंगल पर प्रेजेंट हैं, तो हर प्लेन जो होगा वो किसी ना किसी क्रिस्टल में ब्रैज एंगल थीटा पर होगा, डिफ्रैक्शन इज कास्ट। किसी क्रिस्टल में डिफ्रैक्शन 100 से होगी, किसी और क्रिस्टल में 110 से होगी, एंड सो ऑन। आई मीन टू से डिफ्रैक्शन होगी, हर प्लेन से होगी, मे बी इन वन क्रिस्टल, मे बी इन अनदर क्रिस्टल। बट क्वेश्चन है जब डिफ्रैक्शन होगी, डिफ्रैक्टेड बीम जो होंगी दे विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडिएशन। अब कोन कैसे ऑब्टेन हुई? कोन इज नथिंग, अ कोन ऑफ रेडिएशन इज बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स। जो डिफ्रैक्शन 100 प्लेन से होंगी एक कोन बनेगी, जो डिफ्रैक्शन होगी 110 से अनदर कोन इज फॉर्म। आई मीन टू से कि डिफ्रैक्टेड बीम्स जो आएंगी they appear in the form of cone of radiation, and each cone is basically obtained from diffraction obtained from particular set of planes. Like you see, this is called as source, copper alpha radiation, nickel filter क्यों यूज करते हैं हम? टू गेट मोनोक्रोमेटिक बीम। दिस एक्सरे कैमरा, ये एक्सरे कैमरा है, ये सर्कुलर जो है एक्सरे कैमरा है, और एक्सरे कैमरा के अंदर एक फिल्म लगाई होती है टू 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 फाइंड आउट डिफ्रैक्शन कास्ट, एंड दीज आर द रेज व्हिच आर स्ट्राइकिंग द सैंपल गेट्स डिफ्रैक्टेड। एंड यू कैन सी हियर दिस इज dotted line indicating this is a plane, any plane in a crystal. What happens? This is incident X-rays. It fall on crystal, on the plane, and gets diffracted. This is called as angle of incidence, and this theta is called as angle of reflection. बराबर होंगे दोनों, both are same. Laws of reflection. तो ये plane था, ये incident X-ray beam है, gets diffracted, and this theta are same. This is angle between plane and this is incident beam, and this theta angle, ये इतना theta angle जो है, this is again between plane of crystal and diffracted beam. Also theta must be to be same. If this angle theta, this must be theta also. बिकॉज अगर मैं रेस को उसको प्रोड्यूस करूं सीधा आगे, ये लाइन बनेगी और प्लेन की ये है, दीज आर कॉल्ड एज, दीज टू आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस थीटा एंड दिस थीटा आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से थे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट। ये थीटा, ये भी थीटा होगा। अल्टीमेटली ये टोटल एंगल बनेगा 2 थीटा। This is angle between, this is incident beam. If it remains undifracted, straight जाएगी, तो ये एंगल होगा 2 theta between diffracted beam and undifracted beam. It is very clear now that this beam is going straight, indicating this is the path of undifracted beam. The 2 theta angle होगा between diffracted and undifracted beam. In the same way, ये तो एक प्लेन लिया हमने, यहाँ सेट ऑफ प्लेन होता है। जैसे अगर ये 100 प्लेन है, इट इज वन प्लेन, इसके पैरेलल होगा सेकंड प्लेन, इसके पैरेलल होगा थर्ड प्लेन, पैरेलल होगा फोर्थ प्लेन, और यही रेज फॉल करेंगी। तो एक कोई इस प्लेन से बीम ऐसे आई है, किसी प्लेन से बीम ऐसे जाएगी, किसी से ऐसे जाएगी, किसी से ऐसे आएगी, एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली यू कैन सी क्लियरली अ कोन इज फॉर्म्ड हियर। ए कोन इज बेसिकली नथिंग, इट इज डिफ्रैक्टेड बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अब यही कोन्स जो है, कोन मींस इट इज ए डिफ्रैक्टेड पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ईच कोन जो है, ये कोन डिटेक्ट होती है इन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सरे कैमरा। इस एक्सरे कैमरा के अंदर फिल्म लगाई होती है,
एंड वो फिल्म डिटेक्ट करती है, that film detect the cone, how many cones are formed there. और ये कोन की ऑब्जर्वेंस कैसे होती है इस फिल्म में, यू कैन सी ईच कोन जो है, ईच कोन इंटरसेक्ट द फिल्म एज टू शॉर्ट आर्क्स. ऐसे होता है कि एक आर्क इधर बन रही है, एक आर्क इधर. तो जब इसको फिल्म में देखेंगे तो फिल्म में एक आर्क इधर आएगी, एक आर्क इधर आएगी. दिस मीन्स दैट ए कोन इज फॉर्म्ड एंड ईच कोन जो है इंटरसेक्ट द फिल्म as two short arcs. This is another short arc and so on. And these short arc are symmetrical about two holes. Means कि ये दोनों arcs जो बन रही हैं, two short arcs, they are symmetrical about this hole. ये hole होता है कैमरा में. Let distance between the first pair of equivalent arcs be s. इन दोनों arcs में distance है वो s है. Radius of camera r. तो सर्कमफेरेंस ऑफ कैमरा हो जाएगा 2 पाई r. देन दिस रिलेशन s by 2 pi r is 4 theta by 360. So from this equation, knowing r, what is r? This is the radius of camera that is known to us. Theta is Bragg's angle, but not theta is not known to us. We simply know radius of camera. We know s is called distance between the first pair of arcs. ये कितना है, ये मेजर कर. एक्सपेरिमेंट से ये मेजर करना है कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ आर्क है उसमें एस डिस्टेंस कितना है. सब्स्टिट्यूट हियर, आर इज रेडियस ऑफ कैमरा, थीटा कैन बी फाइंड आउट. थीटा का मतलब हुआ किस एंगल के ऊपर, ये ब्रैग्स एंगल थीटा है, किस एंगल के ऊपर डिफ्रैक्शन कॉज हुई एक्सरेज की बाय ए पर्टिकुलर प्लेन. So ultimately, knowing r, measuring s, Bragg's angle theta can be calculated. And once theta is known to us, use de Broglie, use Bragg's equation. Lambda is equal to 2d sin theta. Lambda wavelength of X-ray is known to us. 2d sin theta. Theta is known to us now. D can be found out. And once you know D, what is D? It is spacing between the set of parallel planes in a crystal. And once D is known to us, knowing D, you can find out unit cell parameters A, B, C. You can determine Bravais lattices and so on. यही D हमने use किया था पीछे in how we can assign Bravais lattices to a crystal. In the same way, knowing the value of D, you can determine the cell parameters A, B, C. Ultimately, once cell parameters are known to us, Bravais lattices is known to us, ultimately you have determined crystal structure of a crystal. This is called Debye-Schrödinger method. Next is called as structure factor and relation to intensity and electron density. Now you see that a unit cell contains atoms in it. कोई यूनिट सेल नहीं, उसमें एटम्स होते हैं. मे बी कार्नर्स के ऊपर होंगे, एस सेंटर के ऊपर होंगे, बॉडी सेंटर पर होंगे, फियर सेंटर पर होंगे. तो यूनिट सेल contain atoms in it. Unit cell is nothing, it contains atoms. And all atoms in unit cell scatter X-rays. A resultant of all the waves, scattered by all the atoms of unit cell is called structure factor. It is the resultant of the waves scattered by all the atoms in a unit cell is called as structure factor FHKL. So structure factor, it depends upon position of each atom and scattering factor. What is scattering factor? Scattering factor atom का होता है effectiveness of an atom to scatter X-rays. ये मैंने पीछे बताया था कि scattering factor किसी भी एटम का होता है effectiveness of an atom to scatter X-rays. So the structure factor depends upon scattering factor of atom, position of atom. So position of atom means, suppose
फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई यूनिट सेल है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल विच कंटेन वन पार्टिकल एट ईच कॉर्नर, वन एट बॉडी सेंटर। तो हम किसी भी कॉर्नर को ओरिजिन मान सकते हैं। अगर ये ओरिजिन है, सो दिस इज कॉल्ड एज, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉडी सेंटर? अगर आपने ओरिजिन से बॉडी सेंटर तक पहुंचना है तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। इफ यू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू बॉडी सेंटर, यू मूव हाफ अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे, फिर हाफ अलोंग वाई एक्सिस ऐसे, एंड हाफ अलोंग जेड एक्सिस ऐसे। इट मीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बॉडी सेंटर इज 1/2 1/2 1/2। एक्स कोऑर्डिनेट 1/2, वाई कोऑर्डिनेट 1/2, जेड कोऑर्डिनेट 1/2। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 0। तो अल्टीमेटली व्हाट इज मेंट बाय पोजीशन ऑफ एटम? पोजीशन ऑफ एटम का मतलब होता है इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये बॉडी सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसकी पोजीशन ऑफ एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स 1/2 1/2 1/2। सेम इज द केस हियर आल्सो, दैट जो स्ट्रक्चर फैक्टर है इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ एटम in a unit cell and its scattering factor. In a unit cell containing J atoms, suppose unit cell contains J atoms. For such a unit cell, structure factor is given by FHKL. Summation J is 1 to N. Fj exponential 2 pi I H xj k yj lzj, where Fj is the स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ jth एटम। अब ये J एटम्स है ना, J1 to N, मे बी J1 to 3, तो यूनिट सेल में 3 एटम्स होंगे। अगर होगा J1 to 6, तो अल्टीमेटली यूनिट सेल कंटेन 6 एटम्स। तो अगर हम J1 लेंगे, ये F1 बन जाएगा, इट इज F1, इट बिकम X1, इट बिकम Y1, इट बिकम Z1। ये समेशन है, सम ओवर ऑल एटम्स। सपोज करते हैं कि किसी यूनिट सेल में 2 एटम्स हैं, तो J is 1 to 2। फर्स्ट एटम के लिए जब J1 होगा ये बनेगा F1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 pi I Hx1 KY1 LZ1 प्लस ये हो गया एक्सप्रेशन फर्स्ट एटम के लिए, एंड देन J is equal to 2, ये बनेगा F2 एक्सपोनेंशियल 2 pi I Hx2 KY2 LZ2 एंड सो ऑन। अगर 3 एटम्स होंगे प्लस थर्ड एटम के लिए F3 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 pi I Hx3 प्लस KY3 प्लस LZ3 एंड सो ऑन। ये समेशन है, वेयर Fj इज द स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ jth एटम, Xj Yj Zj आर इट्स फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, can be expressed in the form of sines and cosines known as Fourier series. I will show it. अगर हमारे पास कोई इक्वेशन कोई नंबर है e raised to power iota x और ix, तो मैथमेटिकली इसकी एक्सपेंशन जो होती है वो होती है cos of x प्लस iota sin x। e raised to power iota x cos x plus iota sin x, and I will use same thing here also। ये है e, ये एक्सपोनेंशियल का मतलब e रेज टू पावर है, e रेज टू पावर 2 pi I Hxj प्लस KYj प्लस LZj। तो इट इज क्लियर नाउ दैट जो पीछे मैंने लिखा था e रेज टू ix, एक आयोटा है दूसरा x है, और यहाँ पर आयोटा तो है, e रेज टू पावर आयोटा तो है, यहाँ पर x के बार क्या है, x यहाँ पर है 2 pi Hxj प्लस KYj प्लस LZj। तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म जो है इज सेम एज e रेज टू पावर आयोटा x। एक्सपैंड करेंगे इसको, ये ऐसे बनेंगे FHKL इज इक्वल टू, ये तो सेम लिखा है मैंने J1 to N Fj तो ऐसे आ गया, बट जो ये टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म इट बिकम्स cos ऑफ cos x, तो ये बनेगा cos x, यहां पर क्या है 2 pi Hxj KYj LZj प्लस
उसका लिखा है प्लस आयोटा साइन एक्स एंड देन प्लस आयोटा साइन एक्स, तो सेम यही है 2 पाई एच एक्स जे के वाई जे एल जेड जे. So ultimately using that exponential term, how it can be expanded? I can expand this term like this. And then I can also write summation first term plus summation of ये जो एफ जे है ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एफ जे जो आएगा फर्स्ट टर्म के साथ भी आएगा इनटू सेकंड टर्म के साथ भी, समेशन फर्स्ट टर्म के साथ भी आएगा सेकंड टर्म के साथ आल्सो, एंड देयरफॉर इट बिकम लाइक दिस FHKL is equal to summation of FJ first term plus iota summation FJ second term. Now this is also known to us. Intensity of diffracted beam is proportional to square of amplitude, means square of structure factor. So intensity is proportional to square of structural factor. And I can also write here square of structure factor equal to, अब देखो ये FHKL है, इसके बराबर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर करना है. इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है मॉडुलस ऑफ एफ स्क्वायर, एंड वी हैव दिस इज FHKL, इसका मॉडुलस का स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू ये है FHKL इज इक्वल टू दिस. मॉडुलस कैसे निकालते हैं? गो बैक, नाउ यू सी इफ F इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ये इमेजिनरी टर्म है. इफ F इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, इसका मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वो होगा दिस टर्म इनटू A माइनस आयोटा B. दिस इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इनटू A माइनस आयोटा B, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू A स्क्वायर. ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है इसका. जब हम मॉडुलस निकालते हैं F का, उसका स्क्वायर करेंगे तो दिस टर्म इनटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस टर्म. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होती है? आयोटा टर्म को नेगेटिव बनाना है. A plus iota B and this term become negative, and this become A square minus iota square B square. Iota square बराबर होता है -1 के, and this ultimately ये बन जाएगा A square plus B square. तो डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि if F is equal to A plus iota B, modulus of F square बराबर होगा A square plus B square, right? I will apply same thing directly here also. Same यहाँ पर है कि दिस इज FHKL इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है A प्लस आयोटा, ये पूरी टर्म B है. और जब मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. A स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया, यू कैन सी क्लियरली, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर. इट इज दिस टर्म ब्रैकेट होल स्क्वायर. इट अल्टीमेटली बिकम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. नाउ यू सी, लेट्स अप्लाई, let us find out structure factor. अब हम इक्वेशन अप्लाई करनी है to few molecules. I will take now body centered cubic structure of identical atom in the unit cell. Body centered structure क्या होता है? Which contain one particle at corner, each corner, and one at body center. That is called as body centered unit cell. And question है, we consider body centered cubic structure of identical atom, means unit cell में all atoms are same. For example, metallic sodium. Metallic sodium जो है उसका स्ट्रक्चर होता है body centered cubic structure. Means metallic sodium has BCC structure, means sodium atoms occupying corners and sodium atoms occupying body center. I mean to say that metallic sodium has body centered cubic structure of identical atoms. Like जैसे ये स्ट्रक्चर है, सपोज करते हैं दिस इज कॉल्ड एज रेड, दिस इज ब्लू बॉल्स. ये ब्लू बॉल्स क्या हैं? सोडियम एटम्स. तो ये स्ट्रक्चर है मेटालिक सोडियम का, वेयर सोडियम एटम्स ऑक्युपाइंग कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर. दिस इज कॉल्ड एज crystal structure of universal structure of metallic sodium. It has body centered cubic structure of identical atom. All atoms are same. वही एटम कॉर्नर पर है, वही एटम बॉडी सेंटर पर है. Now you see, first question is unit cell of BCC.
contains how many sodium atoms? Can anyone tell me कि ये Sir, 2. it contains 2 because it is known to very well known to us कार्नर शेयर होता है 8 यूनिट सेल के बीच में। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्नर पर 8 हैं तो नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल होंगे 8 × 1/8, ओनली 1। बॉडी सेंटर शेयर नहीं होता तो ये एटम बॉडी सेंटर का एटम सिर्फ इसी यूनिट सेल का रहेगा। तो आई बी टू से कि ऐसे लगता है कि इस यूनिट सेल में 8 एटम कार्नर पर हैं, बट इस यूनिट सेल में एक ही एटम है। मीन यू कैन चूज एनी कार्नर, you can choose any corner atom as atoms of this unit cell because हमने यूनिट सेल एक शो किया हुआ है। ऐसे होता नहीं है। सॉलिड्स में यूनिट सेल्स आर क्लब टुगेदर, आपस में ज्वाइंट होते हैं, आपस में कॉर्नर इनके शेयर हो रहे होते हैं, फेस इनके शेयर होते हैं, एज इनके शेयर होते हैं। आई कैन नॉट से कि 8 के 8 जो एटम्स हैं सोडियम एटम जो कॉर्नर पर हैं वो इसी यूनिट सेल के हैं। कॉर्नर 8 में शेयर हो रहा है। Therefore, this unit cell only contain one corner. Or I mean to say, this unit cell only contain one sodium atoms. So any corner is chosen for this unit cell. What about remaining 7 corners? What about remaining 7 corners? हमने क्या किया, 8 कॉर्नर थे और इस यूनिट सेल के हिस्से एक कॉर्नर आ गया। तो हमने कहा कि ये कॉर्नर जो है ना, ये वाला कॉर्नर, ये इस यूनिट सेल का है, तो ये सोडियम एटम भी इस यूनिट सेल का हो जाएगा, ये वाला। व्हाट अबाउट अदर 7 कॉर्नर्स? अदर 7 कॉर्नर्स आर रिगार्डेड एज कॉर्नर्स ऑफ नेबरिंग यूनिट सेल्स। वो इसके नहीं आएंगे ना। एक हमने कंसिडर कर लिया कि ये वाला कॉर्नर जो है इस यूनिट सेल का है, तो रिमेनिंग 7 कॉर्नर्स आर रिगार्डेड एज कॉर्नर्स ऑफ neighboring unit cells. So ultimately, if we have body center unit cell, it only contains 2 sodium atoms, one at corner and one at body center. 2 unit cell, 2 atoms हैं इस unit cell में। Sodium, metallic sodium only contains 2 sodium atom, one at origin, इसको origin मानते हैं, corner is taken as origin, one at origin and one at body center। अब origin वाले sodium atom के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 0। और जो सोडियम एटम बॉडी सेंटर पर है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हाफ हाफ हाफ, बिकॉज जब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन। बट रिमेंबर, आपने डायरेक्ट मूव ऐसे नहीं कर देना है, ऐसे यू हैव टू मूव अलॉन्ग एक्सिस ओनली। अगर आपने ओरिजिन से बॉडी सेंटर में पहुंचना है तो यू हैव टू मूव अलॉन्ग एक्सिस, तो यू मूव हाफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, half along y axis and half along z axis. It means इसके कोऑर्डिनेट होंगे half half half. This is the case here कि we have considered metallic sodium which has body centered cubic structure of identical sodium atoms. So this unit cell has one sodium atom at origin with the coordinate 0 0 0 and second at body center with the coordinate half half half. तो 2 ही सोडियम एटम है इस यूनिट सेल में। फॉर फर्स्ट सोडियम एटम, देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे इसके लिए बीसीसी ऑफ मेटालिक सोडियम के लिए, तो जी आएगा 1 2 2, 2 ही एटम है नेचुरली। तो इस एक्सप्रेशन को आपने लिखना है एटम 1 के लिए भी लिखना है 2 के लिए। पहले लिखेंगे 1 के लिए तो क्या आएगा, जब फर्स्ट आइटम के लिखेंगे ये आएगा F1, इधर आएगा X1 Y1 Z1। आइटम 2 के लिए करेंगे, अगर 1 के लिए करेंगे ये आएगा F1 X1 Y1 Z1। ये एक्सप्रेशन बन गई एटम 1 के लिए। व्हेन यू टेक सोडियम एटम 2 दैट इज एट द बॉडी सेंटर, तो आएगा J2 F2 X2 Y2 Z2, यहां भी आएगा F2 X2 Y2 Z2। तो आई एम राइटिंग सेम एक्सप्रेशन, आई एम फाइंडिंग स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर BCC, स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक सोडियम। इट ओनली कंटेन 2 एटम। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं 0 0 0, सेकंड के हैं हाफ हाफ हाफ। फॉर एटम 1
x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू z1 इक्वल टू 0, तीनों 0 0 0 है। और एटम 2 के लिए x2 y2 z2 तीनों बराबर हैं, हाफ हाफ हाफ, क्योंकि दोनों एटम सेम है। व्हाट इज F1 कॉल्ड एज? यहाँ F1 का मतलब हुआ स्कैटरिंग पावर ऑफ फर्स्ट एटम, एंड जब 2 सेकंड एटम लेंगे तो F2 इज स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एटम सेकंड, बिकॉज दोनों एटम सेम है, इसलिए F1 F2 इज इक्वल टू F, बिकॉज बोथ एटम्स आर सेम and therefore both have same scattering powers. So F1 equal to F2 is equal to F. Equation becomes now. That is the expression for these two atoms. So you can see here that, let us first write here, पहले ये एक्सप्रेशन लिखते हैं एटम 1 और 2 दोनों के लिए, प्लस फिर ये लिखेंगे एटम 1 और 2 दोनों के लिए। पहले इसको एटम 1 2 के लिए लिखते हैं। क्या बनेगी ये? 1 के लिए क्या बनेगी? F1 cos ऑफ 2 बाई, और 1 के लिए xj x1 y1 z तीनों 0 हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा F1 cos 0, सी F1 cos 2 पाई 0। देन इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं फॉर एटम 2 के लिए भी ऑल्सो, इसी को, तो ये होगा F2, बट F2 नहीं आएगा, F ही आएगा, बिकॉज F1 is F2 is equal to F, तो सेकंड एटम के लिए भी स्कैटरिंग पावर F ही आएगी, cos ऑफ 2 पाई, और सेकंड एटम के लिए xj yj zj तीनों हाफ 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 है, बनेगा h/2 k/2 l/2, you see here F cos 2 pi so on, and as a whole square, बिकॉज ये होल स्क्वायर था ऑलरेडी, ये पूरे का पूरा होल स्क्वायर है, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ना, होल स्क्वायर है, प्लस वी टेक सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म के लिए हमने एटम 1 के लिए यूज करना है, सेकंड एटम 2 के लिए भी, एंड देन यू कैन सी हियर, पहले एटम 1 के लिए यूज करेंगे तो आएगा F1 F आएगा sin 2 पाई 0, देन सेकंड एटम के लिए भी F रहेगा sin 2 पाई h/2 k/2 l/2 whole square, and then you can see here that a cos 0, एक 2 pi 2 0 0, cos 0 1 होता है, ये F आएगा, F cos 2 pi, and LCM 2 लिया and so on। यहाँ पर देखो 2 pi into 0, ये sin 0 0 होता है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, and then F sin 2 pi LCM यहाँ ले लिया, 2 and 2 कैंसल here, यहाँ 2 कैंसल हो जाएगा, it becomes अब देखो यहाँ पर F दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, तो F एज ए कॉमन आएगा F स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2 कैंसल cos पाई h प्लस k प्लस l होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो ये तो टर्म 0 हो चुकी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो F स्क्वायर, राइट, इसका भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर पाई, ये आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखा ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, F का भी स्क्वायर आएगा और साइन का भी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर पाई h प्लस k प्लस l। एंड यू सी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, इक्वेशन 3 क्या थी? इक्वेशन 3 थी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ F स्क्वायर, इक्वेशन 3 थी, एंड मॉडुलस ऑफ F स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, आई कैन राइट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ F स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, h प्लस के प्लस एल हमारा इवन भी हो सकता है, h प्लस के प्लस एल हमारा ऑड भी हो सकता है। पहला केस लेते हैं, h प्लस के प्लस एल, देखा सम ऑफ इंटीजर्स है ना ये, अगर इवन है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ इवन आएगा जहाँ ऑड आएगा। इफ h प्लस के प्लस एल इज इवन, इवन क्या होता है? 0 2 4 6 8, ये इवन वैल्यूज है। रिमेंबर अगर 0 करेंगे तो cos 0 पाई आएगा, ये 2 आएगा तो cos 2 पाई, ये 4 आएगा cos 4 पाई, 6 आएगा cos 6 पाई, 8 आएगा cos 8 पाई। एंड रिमेंबर cos ऑफ इवन नंबर ऑफ पाइज इज 1, cos ऑफ इवन नंबर ऑफ पाइज, cos 0 पाई इज 1, cos 2 पाई इज 1, cos 6 पाई इज 1, cos 8 पाई, cos 10 पाई, cos 12 पाई,
तो cos ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई इज 1 एंड देयरफॉर जब h प्लस के प्लस l इवन होगा तो इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू होगी 1 ही आएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4, इट बिकम 4f स्क्वायर। अल्टीमेटली इफ f स्क्वायर इज इक्वल टू 4f स्क्वायर, f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2f। ऐसे ही इफ h प्लस k प्लस l इज ऑड, अगर ये ऑड हुआ तो रिमेंबर ये पहला हमने केस लिया ही नहीं इधर वाला, ये तो हो गया हमारा अपन, इसको नहीं लिया अभी। h प्लस k प्लस l इज इवन, रिमेंबर साइन ऑफ ऑल पाइज इज 0, साइन 0 पाई 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, चाहे साइन का ऑड नंबर ऑफ पाइज हो इवन नंबर ऑफ पाई, साइन ऑफ ऑल पाइज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 ही रहेगी अल्टीमेटली, देयरफॉर इसका आंसर आएगा 4f स्क्वायर। देन व्हेन h प्लस k प्लस l इज ऑड, तो ऑड है, ऑड का मतलब होगा 1 वैल्यू हो सकती है, तो cos 1 पाई आएगा, 3 की वैल्यू होगी 3 पाई, cos 5 पाई 7 पाई, एंड cos ऑफ ऑड पाई, ऑड नंबर ऑफ पाई इज -1, इसकी -1 होती है, एंड देयरफॉर ये होगा 1 - 1, ये होगा 0 स्क्वायर 0, 0 into f स्क्वायर, ये 0 बन जाएगा। h प्लस k प्लस l कोई वैल्यू ऑड होगी तो ऑड नंबर ऑफ पाइज का cos जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, एंड f स्क्वायर इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0। एंड ये हो गया स्ट्रक्चर फैक्टर। यू कैन सी क्लियरली ये स्ट्रक्चर फैक्टर जो होता है, इफ यू आर कंसिडरिंग बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स लाइक मेटालिक सोडियम, तो उसमें अगर h प्लस k प्लस l प्लेन्स का सम इवन आता है तो स्ट्रक्चर फैक्टर बराबर होगा 2fk, 2f में ट्वाइस ऑफ स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एटम, एंड इफ h प्लस k प्लस l ऑड आता है तो स्ट्रक्चर फैक्टर इज इक्वल टू 0। लेट्स अप्लाई सेम अबव फार्मूला फॉर, वो तो आइडेंटिकल एटम के लिए था, फॉर अप्लाइंग फॉर सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए। तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है, सीजियम आयन ऑक्यूपाइंग बॉडी सेंटर होता है, कॉर्नर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में यूनिट सेल जो है उसमें एक सीजियम आयन होगा बॉडी सेंटर पर और एक ही Cl एक्टिव कार्बन पर होगा, और जिस कार्बन पर होगा उसको ओरिजिन मानेंगे। तो ये सपोज Cl नेगेटिव हो गया कार्बन वाला ओरिजिन एटम, और यहां हो गया सीजियम आयन। तो क्वाड्रेट होंगे, एक के होंगे 0 0 0 और सेकंड के होंगे हाफ हाफ हाफ। यू कैन सी क्लियरली कि बाय सपोजिंग सीजियम आयन कार्बन पर है तो इसके 0 0 उल्टा भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सीजियम आयन एट 0 0 0 पोजीशन, क्लोराइड एट हाफ हाफ हाफ। तो हमने Cl एक्टिव को रख दिया बॉडी सेंटर के ऊपर और सीजियम आयन को रख दिया एट कार्बन, एंड वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं है। तो इन दिस केस f values of 2 and are different। आप पीछे हमने किया था f1 is equal to f2 is equal to f, यहाँ f1 is equal to f2 यहाँ बराबर नहीं होंगे, बिकॉज वहां दोनों एटम सेम थे, वही एटम कार्बन पर था, वही एटम बॉडी सेंटर पर था। बट यहाँ पर कार्बन पर जो एटम है वो सीजियम आयन है, दैट हैज डिफरेंट स्कैटरिंग पावर, एंड बॉडी सेंटर पर Cl नेगेटिव आयन एंड दैट हैव डिफरेंट स्कैटरिंग पावर। तो इस केस में f वैल्यू डिफरेंट होगी। सपोज कर लेंगे कि FCl मानते हैं स्कैटरिंग फैक्टर क्लोराइड आयन का है और F सीजियम स्कैटरिंग फैक्टर है सीजियम आयन का, एंड अप्लाई सेम इक्वेशन। नाउ यूनिट सेल अगेन कंटेन 2 एटम्स, तो J की 2 वैल्यूज होंगी, J1 एंड J2। तो वही इक्वेशन यहां अप्लाई करते हैं दोबारा। तो पहले हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्या बनेगी इक्वेशन, ये f मॉडुलो स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू, पहले हम लेते हैं वी हैव टेकन सीजियम, सीजियम कार्बन पर है तो यहाँ आएगा f सीजियम cos ऑफ 2 पाई, सीजियम कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 0, ये बन जाएगा 0, जाएगा f सीजियम cos ऑफ 2 पाई इंटू 0, राइट। देन प्लस
सेकेंड एटम है क्लोराइड आयन, होगा FCl, cos ऑफ 2 पाई हाफ 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 H1/2 K1/2 L1/2। ऐसे ही अगर आप सेम करें, इक्वेशन अप्लाई करें, इस एक्सप्रेशन में जाएंगे तो पहले सीजियम के लिए अप्लाई करेंगे, तो होगा F सीजियम साइन ऑफ 2 पाई 0 0 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, प्लस जब इसी इक्वेशन को लिखेंगे फॉर क्लोराइड के लिए FCl साइन ऑफ 2 पाई H1/2 K1/2 L1/2। सेम 1/2 कैंसल आउट, पहला टर्म तो जैसे ऊपर टर्म हुई थी यहाँ पर, तो ये टर्म आई थी, तो ये टर्म तो यू कैन सी क्लियरली व्हाट हैपेंस हियर। अगली टर्म तो cos 0 1 हो गया, तो FCg में आएगा, FCl cos ऑफ 2 पाई, तो जो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एलसीएम 2 आएगा नीचे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, एंड अगली आएगी FCl साइन पाई स्क्वायर। अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, H प्लस K प्लस L अगर इवन होगा, तो मैंने बताया था इवन वैल्यूज कोई भी लेंगे, cos ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा FCgm प्लस FCl, स्क्वायर है ऊपर तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। बट अगर ये तो ये यहाँ तो चाहे HKL आड हो इवन हो, साइन ऑफ आड नंबर ऑफ पाइज इवन नंबर ऑफ पाइज ऑलवेज 0, ये टर्म वैनिश कर जाएगी। अब सेकंड जब NH प्लस K प्लस R आड इंटीजर होगा, तो यहाँ पुट कर सकते हैं H प्लस K प्लस L 1 3 5, या cos पाई cos 3 पाई cos 5 पाई, दैट इज -1, ये बने FCgm FCl स्क्वायर। So these are called as structure factor, and F is equal to FCgm plus FCl, and this is equal to FCgm minus FCl. Means structure factor जो होगा, if H plus K plus L even integer होगा, तो structure factor बराबर होगा sum of scattering powers of two atoms, and if this sum is odd integer, then structure factor is equal to difference between scattering powers of two. So this is the way how structure factors for various atoms we can calculate. Next topic is called phase problem in structure analysis. Now you see that is known to us. F structure factor is a complex quantity. You can see clearly. अभी हमने पीछे लिखा था structure factor equal to a structure factor. You can see structure factor complex quantity because iota is present here. FHKL is equal to, this is the first term, iota this is second term. A term cosine है, second term sine है, तो cosine term plus iota sine term। अगर मैं ये सपोज करूं ये टर्म है A, ये टर्म B, ये बन जाएगा F is equal to A plus iota B। सेम यहां लिखा है कि since FHKL is complex quantity है, I can write F is equal to AHKL plus iota B, where A, अब वही एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो A बराबर होगा FJ cos 2 by so on, और B बराबर होगा इसके, वही एक्सप्रेशन पीछे लिखी थी हमने, बड़ी एक्सप्रेशन। तो इसको हमने मान लिया AHKL, इसको मान लिया BHKL, and A and B are called as components of two components of structure factor. Structure factor is vector quantity है, इसकी दो components A and B है। Like you see, this angle is 0, this is 90, this is called structure factor, ये arrow है, vector है, इसकी दो components हैं, one along x-axis, one along y, and component of F along x-axis, इसको बोलते हैं A component, and component of F, इस component, इसकी जो B component होगी, that is along y-axis, this is B component, this is A HKL, this is B HKL. There is also a phase angle associated with E structure factor given by tan phi. What is phi? It is phase angle. Tan phi is equal to B by A, because tan ultimately perpendicular base, B by A, where A is known to us, B is known to us. Now you see, from here you can calculate here that
b is equal to b perpendicular base is equal to cos phi, sorry, sin phi, perpendicular by base, this is b, so b by f is equal to sin phi, तो ये लिखा है r d is equal to f into sin phi, you can see clearly b is equal to f sin phi, and a component, this is base by hypotenuse, is equal to cos phi, so this is base, this is a by f is equal to cos phi, or a is equal to f cos phi, and same is shown here, a is equal to f cos phi, but हमने यहाँ f नहीं लिखा है, मॉडुलस लिखा है, बिकॉज हमने a वेक्टर नहीं लिया, मैग्नीट्यूड लिया है, तो अगर आप यहाँ a मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्ट्रक्चर फैक्टर का भी मैग्नीट्यूड आएगा, यहां पर b कंपोनेंट ली है, उसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो स्ट्रक्चर फैक्टर का भी मैग्नीट्यूड यहां आएगा, एंड देयरफॉर a is known to us, b is known, FHKL is equal to, you can see ऊपर लिखा है f is equal to first component plus aorta second component, a is known to us, b is known to us, substitute here, a की वैल्यू ये है, a is FHKL cos phi plus aorta b था BHKL, इसकी वैल्यू ये है, it becomes like this, FHKL मॉडुलस कॉमन आ जाएगा, अंदर cos phi aorta sin phi, and this is equal to exponential aorta phi, अभी मैंने पीछे बताया था that e raised to power ex cos x plus aorta sin x, तो एक्सपोनेंशियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दिए उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल aorta phi बन जाएगा, means f is equal to modulus of f exponential aorta phi. Now you see that a crystal is basically periodic distribution of electrons in 3 dimensions. A crystal is a periodic distribution of electrons in 3 dimensions. So consequently, electron density rho at any point in a crystal can be represented by 3-dimensional Fourier series shown as rho xyz is equal to 1 by v summation HKL FHKL exponential minus 2 pi I, a direct expression है, derivation is not required, minus 2 pi I hx ky lz, 1 by v term को introduce किया यहाँ पर, why, in order to give correct units of rho, rho के units क्या होते हैं, per centimeter cube, इसलिए 1 by v introduce किया है, so that units of rho can be corrected. So combining equation 1 and 2, equation 1 जो है ये, इसमें FHKL है, F is equal to FK, तो हम क्या करेंगे, इस FHKL की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे FHKL is equal to modulus into exponential, तो FHKL भी ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये अल्टीमेटली FHKL वैल्यू पुट करेंगे FHKL into exponential of iota phi. अब देखो एक्सपोनेंशियल a भी है into exponential iota phi आएगा, तो बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, एक होगा e raised to power iota phi, एक होगा e raised to power minus 2 pi I hx ky lz, तो जब बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ iota phi HKL minus 2 pi iota hx ky lz. अब हमने रो निकालना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रो निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए FHKL की और फाई, बिकॉज XYZ हमें नोन है, HKL नोन है, XYZ नोन है, ओनली 2 थिंग्स शुड बी डिटरमिन्ड, मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर एंड फाई, फेज एंगल. Values of modulus of structure factor can be easily obtained. How? पीछे मैंने बताया था, as it is equal to square root of measured intensity. पीछे बताया था that structure factor, हाँ ये I intensity is proportional to ये, तो intensity अगर पता हो structure factor का modulus निकल जाएगा, because I is proportional to ये, and अगर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो मॉडुलस ऑफ f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी,
क्वेश्चन इसमें ये है दैट values of FHKL can be easily obtained. How? Because it is equal to square root of intensity. इंटेंसिटी हमको पता चल जाएगा। इंटेंसिटी कहाँ से मिलती है हमें? जब एक्सरे करते हैं किसी सैंपल का, वी हैव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस बीम्स, कि कितनी हाइट है पीक की, वहां से वी कैन फाइंड आउट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की नॉलेज से हम HKL निकाल लेते हैं, बिकॉज FHKL का जो मॉडुलस है that is proportional to square root of intensity. Once intensities are known to us, FHKL can be find out. प्रॉब्लम कहां पर है? The problem in computing the electron density, मीन इसको निकालने में प्रॉब्लम कहां आ रही है? phi निकालने में। The problem in computing electron density are equivalently determine crystal structure. Once electron density is known to us, we can determine crystal structure. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए वी नीड मॉडुलस ऑफ एफ एंड फाई। मॉडुलस ऑफ एफ तो निकल जाएगा फ्रॉम इंटेंसिटी वैल्यू से। प्रॉब्लम इज इन कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाउ टू ऑब्टेन फेज एंगल फाई फॉर ईच रिफ्लेक्शन। फेज एंगल फाई नहीं निकलता, दिस इज कॉल्ड एज फेज प्रॉब्लम। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में व्हाट इज फेज प्रॉब्लम? फेज प्रॉब्लम इज that the problem of finding phase angle, because हमें निकालना है electron density. Once electron density is known to us, we can determine crystal structure. लिखा है electron density are equivalently determining crystal structure. Once this is known to electron density is known to us, we can determine crystal structure. but हमें चाहिए FHKL and phi. Modulus of F तो निकल जाएगा from the knowledge of intensities. This cannot be find out. Still, crystallographer are finding difficulty in finding phase angle. This is called as phase problem. Next topic is प्रोसीजर फॉर एक्सरे स्ट्रक्चर एनालिसिस। कि कौन कौन स्टेप्स होते हैं टू डिटरमिन टू एनालाइज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। प्रोसीजर ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फ्रॉम ए सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इससे पहला स्टेप होता है ऑब्टेन एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि जब हमारे पास एक्सरे डाटा आता है, फर्स्ट ऑब्टेन एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। देन डिटरमिन यूनिट सेल एंड इंडेक्स डिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्शंस इन टर्म्स ऑफ HKL। कहने का मतलब ये जो पीक्स आती हैं ना, वो कौन सी इंडेक्स का मतलब होता है उनको HKL वैल्यू असाइन करना। लाइक ये पीक 100 है, अगली पीक 200 है, अगली पीक 110 है। तो सेकंड स्टेप होता है डिटरमिन यूनिट सेल एंड देन इंडेक्स द डिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ HKL। डिटरमिन पॉइंट ग्रुप, स्पेस ग्रुप, मेकिंग यूज ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्सेंसेस, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्ट ए पॉसिबल मॉडल ऑफ क्रिस्टल। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि हम किसी कंपाउंड के लिए पहले खुद ही एक बनाते हैं मॉडल, उसे कहते हैं थ्योरेटिकल मॉडल जनरेट करते हैं। मॉडल बना लिया थ्योरेटिकल, देन फिर हम क्या करते हैं कि जो मॉडल जनरेट किया है थ्योरेटिकल, उसकी इंटेंसिटीज कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटल इंटेंसिटी के साथ और देखते हैं बेस्ट मैच कहां आ रहा है। अगर मैच अच्छा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, मॉडल को तो आगे पीछे करेंगे। ठीक है, वो थ्योरेटिकल मॉडल है, एजम्पशन है। तो मॉडल बनाना ऐसे है बाय एजम्पशन, और उसकी फिर इंटेंसिटी हम थ्योरेटिकल इंटेंसिटी जनरेट करते हैं और कंपेयर करते हैं विद एक्सपेरिमेंटल इंटेंसिटी के साथ एंड सी उनमें एग्रीमेंट कितनी आ रही है। अगेन तो मॉडल ऐसे बनाना है, अगर एग्रीमेंट अच्छा नहीं आ रहा, मॉडल को थोड़ा सा रिफाइन करो, थोड़ा आगे पीछे करो, सो दैट
बेस्ट मैच आए बिटवीन द प्रैक्टिकल इंटेंसिटी जनरेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल इंटेंसिटी जनरेटेड, उनमें बेस्ट एग्रीमेंट आए। ये फोर्थ पॉइंट है। देन एडजस्ट एटम्स पोजीशन इन द मॉडल रिपीटेडली। अब ये है, ये थ्योरेटिकल मॉडल चल रहा है कि हमने एटम्स की पोजीशन थ्योरेटिकली आगे पीछे करनी है। कोई एटम कहीं रख दिया तो देखा एग्रीमेंट अच्छा नहीं आ रहा, फिर एटम को आगे पीछे किया, और ऐसे एटम की पोजीशंस एडजस्ट करनी है सो दैट गुड एग्रीमेंट इज फॉर्म बिटवीन observed values and calculated. To adjust the atom position in the model repeatedly to obtain improved agreement between the observed and calculated values. इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनमेंट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेटिस्फैक्टरी है व्हेन लो वैल्यू ऑफ रिलायबल फैक्टर आर इज ऑब्टेन्ड। आर बराबर होता है ये समेशन एच की एल मॉडुलस ऑफ, ये दो मॉडुलस है, एक मॉडुलस ऑफ ऑब्जर्व्ड, मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेटेड। ये स्ट्रक्चर फैक्टर ऑब्जर्व्ड है, स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेटेड है, दोनों का मॉडुलस है। जो माइनस का रिजल्ट आएगा उसका मॉडुलस करना है, डिवाइडेड बाय समेशन एच की एल मॉडुलस ऑफ ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर। इस रेशियो को बोलते हैं आर। और कैसे पता चलता है कि स्ट्रक्चर जो है वो सेटिस्फैक्टरी है? व्हेन वी गेट लो वैल्यू ऑफ आर। जितनी आर की वैल्यू लो होगी उतना क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। एफ ऑब्जर्व्ड एंड एफ कैलकुलेटेड आर द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर फैक्टर्स, एंड इनका जो इनको ब्रैकेट में लेते हैं इसका मॉडुलस है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फॉर वेल क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक एंड मेटालिक कंपाउंड हैव आर वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। ये अगर हम एक्सेस स्ट्रक्चर करते हैं किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का या मेटालिक कंपाउंड का, तो बेस्ट स्ट्रक्चर तब आता है जब आर की वैल्यू होती है अराउंड 0.03। बट जब हम स्ट्रक्चर निकालते हैं किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाइक प्रोटीन, तो आर की वैल्यू जनरली हायर होती है 0.03 से। ये क्वेश्चन था सिंगल क्रिस्टल का। बट व्हेन पाउडर इज एग्जामिन्ड मैनी डिफ्रैक्टेड बीम्स ओवरलैप, so procedure of structure determination become more difficult. So various steps हैं which can be used for analyzing X-ray crystal structure. So this is all about your X-ray diffraction.